studied that the two transistors connected back to back can be used as differential amplifier, and that differential amplifier was a building block of the operational amplifier. Now with the operational amplifier, again we want to make a differential amplifier. So differential amplifier particularly means which amplifies the difference of two signals applied to its two terminals. So we know to the op amp we have inverting terminal and non-inverting terminal. So if we are connecting two different sources to inverting and non-inverting, we are able to get the amplification of their difference, and that is what is a job of the differential amplifier. Okay, so in this differential amplifier we are going to see some differential amplifier using one op amp, two op amp, three op amp. Already, to my knowledge, you have already studied a differential amplifier using one op amp. Can you recall? Have you studied a differential amplifier using? Now this is the diagram of my interest. Okay, so we are going to see a differential amplifier now first using one op amp. Now what do you see in this op amp? There are two inputs given. Let's say I name this as a Vx, then this has been named as a Vy. Vx is connected to the inverting terminal RF R1, this is R2 R3, and it is Vy is connected to non-inverting terminal. So what sort of configuration it is? So it is both inverting and non-inverting both. Now how do we analyze this one? Can anybody suggest me? कैसे करेंगे इसको, एनालाइज कैसे करेंगे? अल्टीमेटली हमारा एम क्या होता है? टू गेट द आउटपुट वोल्टेज, एंड वी वांट टू शो that it is acting as a differential amplifier, means it is amplifying the difference of these two signals Vx and Vy. So how should we analyze? How should we take the output voltage? कैसे कैलकुलेट करें बताइए? जब दो मोर देन वन इनपुट्स अगर लगाए तो क्या लगाना चाहिए? सुपरपोजिशन थ्योरम. यस यस, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम. ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम सेज द ओवरऑल टोटल इफेक्ट of the all sources is equal to the individual effect. अब यहाँ पे दो सोर्सेस है, तो Vx का अगर हमने इफेक्ट निकाल पाए क्या आउटपुट होएगा, और फिर बाद में Vy का निकाले कि क्या आउटपुट होगा, तो दोनों का हम ऐड कर देंगे. यानी कहना हम ये चाह रहे कि Vo will be equals to Vo due to Vx then Vo due to Vy, ये बोलना चाह रहे हैं. तो अब Vo due to x कैसे निकाले और Vo due to y कैसे निकाले, बराबर है. अब Vo ड्यू टू x निकालना है, Vx निकालना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको कि we'll have to make Vy as 0, बराबर है ना. तो इफेक्टिवली ये सर्किट कैसे दिखेगा? अगर ये देखा जाए तो इस ऑप एम्प में यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये एक फीडबैक रजिस्टर है, यहाँ पे कनेक्टेड है. सो इफेक्टिवली व्हाट आई वांट टू से कि Vx is connected here, and what do we see here? एक one register, another register, this is grounded, this is R3, and now we are making this as 0, Vy as 0. So as this is 0 voltage and this is 0 voltage, what voltage should I get here at the V1 point? यह 0 volt मिलेगा, ये ठीक है? Yes sir. हाँ, अब V2 हम देखेंगे. अभी यहाँ पे RF कनेक्टेड है, ये R1 कनेक्टेड है. अब हमको मालूम है कि ये यहाँ अगर ग्राउंड है तो दिस इज एक्टिंग एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारा आउटपुट क्या होगा? Vo ड्यू टू Vx. ठीक है, कितना आएगा? माइनस RF अपॉन R1 Vx. चलो ये एक रिलेशन मिल गया. अब सेकंड देखते हैं. सेकंड यानी अब हमको क्या देखना है? Vo ड्यू टू Vy. तो Vo ड्यू टू Vy कैसे मिलेगा? Vx को 0 करना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली ये 0 हो जाएगा, तो हमारा ऑप एम्प कुछ इस तरीके से दिखेगा. यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर है, ये यहाँ कनेक्टेड है और ये ग्राउंडेड है. तो नाम है R1, ये RF, और यहाँ एक रजिस्टर है, ये ग्राउंडेड है. अब थोड़ा सा आप ही लोग बताएंगे तो मुझे मजा आएगा. इसकी वैल्यूज क्या है जरा देखते हैं. R2 और R3, ये R2 और ये R3, और यहाँ Vy वोल्टेज दिया हुआ है. तो अब हमको ये आउटपुट निकालना है. सर 1 प्लस RF अपॉन R2 ऐसा नाम दे सकते हैं आपको समझने के हिसाब से. इसको Vo y लिख सकते हैं, इसको Vo x ड्यू टू x.
वो अच्छी लैंग्वेज है, ये सब स्ट्रेट लाइन वगैरह उतना अच्छा नहीं लगता। वीओ ड्यू टू वीएक्स, वीओ ड्यू टू वीवाई, ठीक है। हाँ तो बताइए क्या बोल रहे थे आप? सर 1+RF/R2 into VOY वन into प्लस आर VY। एफ 1+RF अपॉन R2। R2 कहाँ से आएगा? जनरली यही का रहता है वो। यस सर, R1 R1। आपको मैंने बार बार बोला था कि ऐसे जानबूझ के हिंट दिया था कि यहाँ पे मल्टीपल कनेक्शन रहेंगे और अलग अलग सोर्सेस रहेंगे, तो सिर्फ या इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना और वो होगा 1+RF/R1। इसका मीनिंग क्या है कि हमको V1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हम लोग कर चुके, पर हर बार भूलो मत, नॉन इन्वर्टिंग के टर्मिनल पे जो अगर वोल्टेज मिल गया तो आप इसको 1+RF/R1 कर सकते हैं। दूसरा वे ये है कि ये V1 मिल गया तो आप लिख सकते हैं कि V2 इक्वल्स टू V1 और यहाँ KCL लगा दो, उससे भी मिलेगा। आप बिल्कुल यानी बेझिझक रहिए कि वो दोनों सेम है। अभी मैं वो उसको डिटेल बताता नहीं, लेकिन V1 कैसे निकलेगा आप बता सकते क्या? V1 वोल्टेज यहाँ पे R2 है, यहाँ VY है, यहाँ R3 है, ग्राउंड है और ये V1 है। क्या V1 नहीं निकाल सकते हम लोग? V1 इज अ वोल्टेज अक्रॉस R3। बताइए, इसके पहले बताया मैं सीरीज वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। V1 का वोल्टेज कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा? V1 किसके अक्रॉस वोल्टेज है? R3। तो निकालो, बस डायरेक्ट लिखना है R3। यस, अब ये भूलना ही नहीं है आपको। R3/R2+R3 इंटू टोटल वोल्टेज यानी कि VY। यानी VY जब आप सीरीज ये दोनों के नेटवर्क में देते हैं, VY एक तरीके से ऐसे कनेक्टेड है ना, ये अब दिखाने की जरूरत है कि ये ग्राउंडेड। तो इस V1 ये R3 के अक्रॉस है तो उसका फ्रैक्शन वोल्टेज आएगा। फ्रैक्शन क्या आएगा? R3/R2+R3। इज इट ओके? अब VOY मतलब ये टोटल ओवरऑल आउटपुट, तो ये कैसे होगा? 1+RF/R1 इंटू V1। अभी V1 आपने अभी निकाला है, उस वैल्यू को यहाँ रख देना है, RF/R1। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक हम लोग याद रखना, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कभी भी ये सबट्रैक्टर हमने यूज कर चुके, आप भूल गए, ये दोनों रजिस्टर सेम करते हैं और कभी भी ये दोनों रजिस्टर सेम करते हैं, यानी R3 इज इक्वल टू RF करते हैं। टेकिंग R3 इक्वल टू RF, सॉरी R3 की तरह, हाँ R3 इक्वल टू RF। और ये क्या है? R को नाम क्या दिया है जरा देखते हैं। R2 है ये R2। R1 इक्वल टू R2, R3 इक्वल टू RF एंड R2 इक्वल टू R1। तो VOY क्या आएगा देखो तो जरा, ये था R1+RF इंटू R3 इक्वल टू RF अपॉन R2+R3 यानी कि R1+RF। तो ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं। नीचे क्या आया था? R1+R2, ये R1। तो अल्टीमेटली ये, और यहाँ पे है VY, अल्टीमेटली ये क्या आ गया? VOY। VOY आ गया आपका RF/R1 VY, ठीक है। ये सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है देखो जरा, क्या दिख रहा है? -RF/R1 VX और ये +RF/R1 VY। That implies VO is equal to VOX plus VOY. So it gives me RF/R1 VY minus VX। या कई लोग इस तरीके से लिखते हैं कि VO equals to -RF/R1 VX minus VY। ठीक है, आपको जैसा जो सूट करता है वैसे लिख। जैसे यहाँ क्या लिखा है देखो तो आपके फिगर में देखो, -RF/R1 VX minus VY। एक और देखो, ये VX minus VY, कैन आई से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज VXY। ये दिस VX minus VY ये यहाँ का वोल्टेज होगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ये VX minus VY है, VX minus VY। तो इस तरीके से भी लिखते हैं, कभी कभी इस टाइप से भी लिखते हैं, इसी को -RF/R1 VXY, यानी कि ये डिफरेंशियल वोल्टेज और VO इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ वोल्टेज। तो कैसे याद रखोगे इसको? याद रखना कैसे? सिंपल है, हमको मालूम है कि इन्वर्टिंग का जो टर्मिनल है वो निगेटिव देगा तो -VX आएगा, और जो नॉन इन्वर्टिंग का है तो पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव। पर प्रोवाइडेड these two resistors to be equal and feedback should be equal to this one. I hope it is clear. सिंपल सा है। इसी को, ये वाला जो सर्किट है ना, ये क्या किया है, इसको वेरिएबल गेन करने के लिए, वेरिएबल गेन करने के लिए आउटपुट में एक पॉड जोड़ दिया है, रजिस्टर जोड़ दिया है। तो ये आउटपुट जो है ये वेरी कर सकते हैं हम इस वेरिएबल रजिस्टर से। सेम है ये वेरिएबल गेन के लिए एडजस्टमेंट किया हुआ है। अब हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी मैं एक डायग्राम डाल देता हूँ, कौन सा रह गया था। One, we can say there is one drawback associated with this one single op amp। क्या है उसका? इनपुट इम्पीडेंस। कैसे? लेट अस सी। अगर इसको ऑब्जर्व करो आप, तो इनपुट इम्पीडेंस आपको कैसे दिखेगा किसी इसी एम्पलीफायर में, कि एक तो है आप इस साइड से देख रहे हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल से, मतलब कैसे? सुपरपोजिशन थ्योरम लगा रहा हूं अगर मैं,
तो एक बार अगर Vx 0 करूंगा, एक बार Vy 0 करूंगा, तो एक बार वो इन्वर्टिंग मोड में रहेगा, एक बार नॉन इन्वर्टिंग मोड में रहेगा। इतना तो ये समझ में आता है कि नहीं? Yes, एक बार sir. तो इसमें डबल इफेक्ट है, इन्वर्टिंग प्लस नॉन इन्वर्टिंग। अब याद करो इन्वर्टिंग में कितना रहता था इनपुट इम्पीडेंस और नॉन इन्वर्टिंग में कितना रहता था। अगर आपको याद होगा तो नॉन इन्वर्टिंग में सब गुड़ी गुड़ी था, सब कुछ अच्छे थे। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मोड में जब है, मतलब कब, जब Vy एक्टिव है, तब आपका RIF इज इक्वल टू कितना आएगा, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, तब आप लिखते थे कि इनपुट इम्पीडेंस जो भी है वो 1 प्लस AB टाइम्स था, वो 1 प्लस AB टाइम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जब ये R2 और R3 कनेक्टेड है, ठीक है, R2 और R3, ये R2 और प्लस R3 ये जो है, ये रजिस्टर जो है ना, ये इसके वो जो आ रहा था उसके पैरेलल में आ जाता है। ये R2 प्लस R3 जो है, ये आप इस सर्किट को देखो जरा, यहाँ पे अगर मैंने ये Vy को यहाँ से देख रहा हूँ, जब इसका इनपुट इंपीडेंस निकालना है तो R2 प्लस R3 दिस विल बी, ये जब Vx 0 करेंगे तो इसके इनपुट इंपीडेंस के पैरेलल आ जाएगा। अब R2 प्लस R3 थोड़ा कमी वैल्यू रहेंगे, किलो में रहेगा, पर इनपुट इंपीडेंस तो अपना बहुत ज्यादा हेवी है, यू कैन से आइडियली इनफाइनाइट। तो जब भी लो रेजिस्टेंस पैरेलल विथ हाई रेजिस्टेंस आता है, तो हमने इसके पहले देख चुके थे कि उसका ओवरऑल इफेक्ट लो ही रेजिस्टेंस रहता है, तो अप्रोक्सीमेटली RIF will come to be R2 plus R3, ठीक है, R2 plus R3। सिमिलरली इन द इन्वर्टिंग क्या रहता है, इन्वर्टिंग में याद करो कि हमारा RIF जो रहता था वो जो R1 लगा रहता था ना, उसके बराबर रहता था, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू R1। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर नॉट गेटिंग अ कांस्टेंट इनपुट इंपीडेंस थ्रू आउट। कुछ समय में ये है तो कुछ समय में ये है, so that is the problem associated with the one op amp. Now let us see differential amplifier using two op amp. Now just observe this diagram and just make certain strategy कि इसका आउटपुट वोल्टेज हम कैसे निकाले। कोई हिंट देगा? दो op amp, एक A1 नाम दे दिया है सपोज और एक A2 नाम दे दिया है। अब बताओ कैसे आउटपुट निकाले? डिफरेंशियल है, कैसे पता चल रहा है कि नॉन इन्वर्टिंग को भी आपने एक Vx दिया है और इन्वर्टिंग को क्या किया है, एक और op amp का आउटपुट दिया है। कैसे निकाले? थोड़ी हिंट बताओ, कुछ बताएगा कोई? ये सोच के देखो कि ये सिर्फ इस ऑप एम्प पे आप ऑब्जर्व करो, ये जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ना इस ऑप एम्प पे, या फिर मैं एक राउंड बना रहा हूँ, इस ऑप एम्प को आप ऑब्जर्व करो। देख लिया आपने? ये ऑप एम्प काय में नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग है सर, नॉन इन्वर्टिंग है। उसका इनपुट में क्या दिया है? Vy। तो नॉन इन्वर्टिंग का आउटपुट अगर यहाँ निकाल लिए यहाँ पे, तो फिर हम सुपरपोजिशन यहाँ लगा सकते, कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्या करेंगे हम? यस, लेट्स find the output of A1 which is let's say यहाँ पे नाम दे दिया है VZ, और वो VZ क्या आएगा? देखो वैल्यूज पहले ही एक क्लियर कर दिया कि R3 is equal to R1, ठीक है, आपको दिख रहा नहीं होगा ना, ये R3 equal to R1 और ये R2 equal to RF। सो कैसे निकलेगा VZ बताइए? अभी आपने बताया था नॉन इन्वर्टिंग में है 1 प्लस RF में कितनी वैल्यू दी है? R1। RF में दिया है वैल्यू, या R1 है क्या? R3 अपॉन R2 इंटू Vy। ये समझ में आया क्या? 1 प्लस R3 अपॉन R2 इंटू Vy। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, समझ में आ गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट से इसको नंबर दे देते हैं। अब हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। क्यों सुपरपोजिशन थ्योरम लगा रहे? कोई हिंट? अब ऐसे समझो कि एक VZ भी एक सोर्स है और एक Vx सोर्स है, जो कि एक नॉन इन्वर्टिंग को लगा और एक इन्वर्टिंग को लगा, तो हमको सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना ही पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अवर VO विल बी इक्वल्स टू VO ड्यू टू X एंड VO ड्यू टू Z, ठीक है। तो चलो सबसे पहले VOX पता करते हैं। कितना होगा VOX? मतलब आउटपुट ड्यू टू Vx। अगर VOX निकालना है तो VZ 0 करेंगे, जब भी जैसा ये ग्राउंड हो जाएगा, ये पॉइंट ग्राउंड हो जाएगा ना। यस सर। तो फिर ये नॉन इन्वर्टिंग में होगा कि इन्वर्टिंग में होगा? सर Vx नॉन इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग ही रहेगा। बराबर है। फिर यहाँ पे फार्मूला लगा दो, 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू Vx, ये निकल चुका। अब सेम VOY निकालिए, सॉरी VOZ कितना होगा? अब इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दिया, अब इसको ग्राउंड कर दिया, और यहाँ पे VZ सोर्स है, ऐसे समझ लीजिए। 1 प्लस R3 अपॉन R2 इंटू अभी VZ। पहले सबसे अभी VZ अगर लगा है और Vx 0 है तो इन्वर्टिंग में है कि नॉन इन्वर्टिंग में? यहाँ से शुरू कर। इन्वर्टिंग में सर, नॉन इन्वर्टिंग। अभी देखो VZ कहाँ लगा है? इन्वर्टिंग को है कि नॉन इन्वर्टिंग को है? इसके पहले आपने नॉन इन्वर्टिंग कर चुके हैं ना ये। यस सर। अभी देखो तो अभी इन्वर्टिंग है ना।
हाँ, तो इन्वर्टिंग में क्या होता है, माइनस आर एफ अपन आर वन, यहाँ वैल्यू भी माइनस आर एफ अपन आर वन ही है, तो लिख लेते हैं माइनस आर एफ अपन आर वन वी जेड। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, हमारा वीओ इज इक्वल टू ये दोनों का एडिशन है, सो 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन टाइम वी एक्स, ठीक है, और ये है माइनस आर एफ अपॉन आर वन वी जेड। और वी जेड की वैल्यू अपन ने पहले ही निकाल के रखे थे, वो वाली वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दूं, चलेगा ना? तो ये लिख दे रहा हूं मैं जानबूझ के, अब इसको पूरा आर वन प्लस आर एफ वी एक्स माइनस आर एफ अपॉन आर वन, और वीजेड की वैल्यू कितनी है जरा देखो, 1 प्लस आर थ्री अपॉन आर टू इंटू वी वाई, ठीक है। अभी जब भी हमने ये वैल्यूज लिया था कि आर टू इज इक्वल टू आर एफ एंड आर थ्री इज इक्वल टू आर वन, ये यहाँ लिखा हुआ है, तो हमारा वीओ क्या आएगा, आर वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन वी एक्स माइनस आर एफ अपॉन आर वन इंटू आर टू की वैल्यू है आर एफ और आर वन, और आर टू की वैल्यू है आर एफ टू वी वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देखो सभी कॉमन निकल रहा है, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी एक्स माइनस वी वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस वी वाई। सो नाउ ये Vx माइनस Vy को अगर आपने Vxy समझे तो इसका गेन कितना आ रहा है, ये डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिखो 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन Vxy, तो इसका गेन जो है डिफरेंशियल गेन Vo ड्यू अपॉन Vxy, यानी ये जो आउटपुट है यहाँ का डिवाइडेड बाय ये करे तो ये गेन निकल जाता है, वो गेन आ रहा है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। तो जो इसके पहले माइनस आर एफ अपॉन आर वन गेन था, अभी 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन आ गया, where Vxy is equal to Vx minus Vy, ठीक है। सो इज इट क्लियर, ये आपको रिलेशन आ गया है, ठीक है ना? अब इसमें कोई दिक्कत है? बस कुछ नहीं, मैनिपुलेशन है, कुछ और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या किया हमने, इस ऑप एम्प का आउटपुट निकाला, किस तरीके से कि ये नॉन इन्वर्टिंग मोड में है, दिस 1 प्लस दिस अपॉन दिस यहाँ पे निकाल दिए वी वाई, तो ये वीजेड की वैल्यू मिल गई। अब ये इस पूरे ऑप एम्प को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो यहाँ वीएक्स लगा हुआ है और यहाँ वीजेड लगा हुआ है, तो बस सुपरपोजिशन लगाए, एक नॉन इन्वर्टिंग Vx यानी नॉन इन्वर्टिंग और Vz यानी इन्वर्टिंग, और कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। सो यू आर गेटिंग द रिलेशन एज Vo is equal to 1 plus Rf upon R1 Vxy. Okay, so we come to know that the output voltage is proportional to the differential input, so we can say it is acting as a differential amplifier. Now यह इसका अगर इनपुट इंपीडेंस देखते हैं तो क्या क्या दिखेगा हमको, इनपुट इंपीडेंस दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक है इनपुट इंपीडेंस इस साइड से जब देखते हैं, इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि इस साइड से जब देखते हैं तो ये नॉन इन्वर्टिंग को है नॉन इन्वर्टिंग को, और इस साइड से जब ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ये वाला सोर्स रहा तो भी नॉन इन्वर्टिंग को है। तो हमने एडवांटेज क्या लिया कि बोथ द इनपुट्स यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पे रखे और इधर एक और ऑप एम्प यूज करने से इसका डिफरेंस भी निकाल लिए, तो हमारा इनपुट इंपीडेंस दोनों के वक्त अच्छा खासा सेम रह सकता है, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग के लिए हमारा आ रहा है, समझो y की तरफ, वी विल गेट एज आ रहा है 1 प्लस ए बी, ये हम हर बार रहता था कि नॉन इन्वर्टिंग में, ठीक है, वेयर b इज हमारा फीडबैक फैक्टर, यानी कि R2 अपॉन R2 प्लस R3, ठीक है, बीटा फैक्टर जो फीडबैक फैक्टर रहता था वो। सिमिलरली अगर आ रहा है f ड्यू टू x, तो आप जब देखेंगे कि ये आ रहा है टाइम्स 1 प्लस ए बी है, और यहाँ बीटा आ रहा है R1 अपॉन R1 प्लस RF, एंड जस्ट बाय सिलेक्टिंग वी आर सिलेक्टिंग R1 इक्वल टू R3 एंड RF इक्वल टू R2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बीटा आ गया आपका R2 अपॉन या RF अपॉन RF प्लस R1। अगर इक्विवेलेंटली देखे तो यहाँ पे आ रहा है R1 अपॉन R1 प्लस RF। अब देख रहे कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है लेकिन न्यूमरेटर अलग है, इसका RF है इसका R1 है। सो हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम बिल्कुल हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ कि RIFX इज नॉट इक्वल टू RIFY, जबकि दोनों नॉन इन्वर्टिंग में है, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि दोनों के जो इनपुट इंपीडेंस है ये इक्वल नहीं है। सो ऑल्दो इट इज बेटर देन द डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग वन ऑप एम्प, but it is not as best because still the input impedance from both the terminals are not equal. Why not equal? क्योंकि इसका बीटा फैक्टर अलग हो रहा है, इसका बीटा फैक्टर अलग हो रहा है, और उनकी सब वैल्यूज जब रखते हैं RIFY is not equal to this one, ठीक है ना?
so that may cause a loading problem. Okay, so for the time being or for today's lecture we'll keep this as intact. आज के लिए इतना ही ले लेते हैं.